بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو ہے سفاری پارک جا رہے ہیں ہم، یہ اس کی انٹرس ہے۔ سورج کی روشنی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا کیمرے کا ویو اتنا کلیئر نہیں ہے، اور یہ موبائل سے بنائی گئی ویڈیو ہے، اور یہ اس کی انٹرس ہے۔ اس طرح آگے سیدھا ہی چلے جانا ہے۔ لاہور میں ہے یہ، لاہور سفاری زو۔ تو بڑا سنا ہوا تھا ہم نے اس کے بارے میں، تو آج ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو یار چلتے ہی ہیں۔ یہ اس کی انٹرس ہے، اور یہاں پہ یہ پارکنگ ایریا، آپ کہیں بھی گاڑی کھڑی کر سکتے ہو۔ پہلے تو ایسا تھا کہ آپ گاڑی میں ہی اندر جا سکتے تھے، پر آئی گیس 1-2 کمپلینٹس تھی، اس کی وجہ سے اب آپ کو گاڑی باہر پارک کرنی پڑتی ہے، اور یہ گاڑی پارک کرنے کے بعد آپ یہاں سے پیدل جائیں گے۔ یہ اس کا گیٹ وے ہے، اس کے اندر جائیں گے، اور اچھا بنا ہوا، باہر سے تو بہت اچھا لک تھا۔ اور یہ اس کے اندر ہے، اندر جو جہاں سے آپ ٹکٹ خریدیں گے، بڑوں کی جو ٹکٹ ہے وہ 800 کی ہے، چھوٹوں کی 450 کی ہے، اور یہ بہت ہی اچھا سا ویو ہے اس کا، لائک آپ کسی ایئرپورٹ پہ چلے گئے ہو یا کسی بہت مزے کی جگہ پہ، فل فینز، اے سی سب کچھ ہے، اور یہاں سے باہر بھی نظر آ رہا تھا کافی صاف ستھرا، اور ایک یہاں سے ہم ٹکٹس لے کے ابھی باہر آ گئے ہیں۔ باہر آنے کے بعد یہ سارا ویو تھا، بہت ہی صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین کا اچھا تھا، اور ہم نے آل ان ون اس کے اندر ٹکٹس تھی تو 800 کے اندر جو ہے نا، یہاں پہ جو بھی جنگل سفاری اور اس کے اندر لائن ایریا سب کچھ انکلوڈ تھا اس کے اندر۔ اور اگر آپ لائن کو اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتے ہو تو اس کے 2000 علیحدہ سے چارجز تھے، تو وہ ہم نے ذرا اسکپ کر دیے۔ بہرحال یہاں سے آپ ویو دے سکتے ہیں، تو باقی جو ہے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، آپ انشاءاللہ دیکھیے گا، اور کوئی کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ انگیز جانوروں کی دنیا میں لے کر جائیں۔ یہ ماحول دوست گاڑیاں نہ صرف خاموشی اور آرام دہ سفر کا وعدہ کرتی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے ماحول کو بچانے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ آپ کا سفر ساؤتھ رینج سے شروع ہو رہا ہے، جہاں ہم نے پنجاب اوڑیال کے قدرتی مسکن کو بھرپور طریقے سے دوبارہ بنایا، جو پاکستان اب تیار چلی۔ اب ہم نمک کے پہاڑوں والے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم نے پنجاب اوڑیال کے قدرتی مسکن کو بڑے احتیاط سے دوبارہ بنایا۔ یہ پہاڑ اگرچہ انسان ساختہ ہے، لیکن وہ اصل نمک کے پہاڑوں کے سخت اور کھردرے علاقے کی مکمل نقل کرتے ہیں، جو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پھیلے ہوئے۔ یہ منفرد ماحولیاتی نظام پنجاب اوڑیال کے لیے مثالی ماحول فراہم کرتا ہے، جو پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی بھیڑوں کی ایک قسم ہے۔ غور سے دیکھیں تو آپ ان شاندار جانوروں کو ڈھلوانوں پر چڑھتے یا پتھروں پر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے موٹے گھماؤ دار سینگ اور لمبی گردن کے گچھے انہیں واقعی قابل دید بناتے ہیں۔ نمک کے پہاڑ پنجاب اوڑیال کی بقا میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے نرم چٹانی ڈھلوانوں اور گھنی جھاڑیوں کے ساتھ یہ انہیں چرنے، افزائش نسل اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایک محفوظ پناہگاہ فراہم کرتے ہیں۔ اس جگہ پر حفاظتی کوششیں ان کی مسلسل خوشحالی کو یقینی بناتی ہیں، جس سے آپ ان شاندار مخلوقات کو ان کے دوبارہ تخلیق کردہ قدرتی ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم نمک کے پہاڑوں والے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم نے پنجاب اوڑیال کے قدرتی مسکن کو بڑے احتیاط سے دوبارہ بنایا۔ یہ پہاڑ اگرچہ انسان ساختہ ہے، لیکن وہ اصل نمک کے پہاڑوں کے سخت اور کھردرے علاقے کی مکمل نقل کرتے ہیں، جو ماحول فراہم کرتا ہے، جو پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی بھیڑوں کی ایک قسم ہے۔ اس جگہ پر حفاظتی کوششیں ان کی مسلسل خوشحالی کو یقینی بناتی ہیں، جس سے اب ان شاندار اب تک تیار ہو جائیں پاکستان ڈیئر سفاری کے دلکش سفر کے لیے۔
ये वसी इलाका हमारे मुल्क में पाए जाने वाले हरणों की हैरत अंगेज दुनिया की झलकियां पेश करता है, जहां हर मोड़ पर आपको कोई न कोई नया और दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। सबसे पहले छोटे जिस्सी के हाथ गियर पर अपनी तवज्जो दें। ये हिरन घने जंगलों और घास के मोटे सीधे सींग रखते हैं, जो उन्हें जंगल के माहौल में छुपने में मदद देते हैं। आगे बढ़कर चीतल स्पॉटेड हरणों को देखें, जो पाकिस्तान में सबसे आम किस्म के हिरन हैं। उनका सुर्ख माइल भूरा रंग और सफेद नीचे हिस्से उन्हें झाड़ियों के दरमियान छुपने में मदद देते हैं, जबकि हरकत के वक्त उनके जिस्म पर मौजूद सफेद दाग एक खूबसूरत तजाद पेश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान डियर सफारी में हरणों की यही दो अक़साम नहीं, सामुद्र हिरन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बड़े जिस्सी वाले हिरन अपने लंबे टांगों, लंबी गर्दन और बड़े घूमते सींगों के लिए मशहूर है। उनका बेड़ा कोट उन्हें जंगलों में छुपने में मदद देता है, जहां वो चरना और पानी पीना पसंद करते हैं। अब जरा नील गाय पर निगाह डालें, जो हिंदुस्तानी ज़ैली बड़े आज़म में पाए जाने वाले सबसे बड़े हिरन हैं। उनका शानदार साइज और ताकतवर जिस्म हैरत अंगेज है। नर नील गाय का नीला कोट और लंबे घूमते सींग उन्हें एक शाहाना वकार देते हैं। उन्हें देखना एक ऐसा तजर्बा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान डियर सफारी में आपको काला हिरन भी देखने का मौका मिलेगा, जो एक नायाब और खूबसूरत किस्म का हिरन है। उनका कोट मुकम्मल तौर पर सियाह होता है और उनके जिस्म पर सफेद निशान उन्हें एक मुनफरिद ज़हूर देते हैं। उन्हें गिरोहों में चलते या फलांग लगाते देखना एक दिलचस्प मंजर है। पाकिस्तान डियर सफारी सिर्फ उन खूबसूरत हरणों को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके माहौल और उनके माहौलियाती निज़ाम में अदा किरदार को समझने के बारे में भी है। आइए मिलकर उन जानवरों और उनके मस्कनों की हिफाजत करें। अब तैयार हो जाएं पाकिस्तान डियर सफारी के दिलकश सफर के लिए। ये वसी इलाका हमारे मुल्क में पाए जाने वाले हरणों की हैरत अंगेज दुनिया की झलकियां पेश करता है, जहां हर मोड़ पर आपको कोई न कोई नया और दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। सबसे पहले छोटे जिस्सी के हाथ गियर पर अपनी तवज्जो दें। ये हिरन घने जंगलों और घास के मैदानों में रहते हैं और उनका रंग गहरे जैसे लाल माइल तक होता है। उनके नर छोटे सीधे सींग रखते हैं, जो उन्हें जंगल के माहौल में छुपने में मदद देते हैं। आगे बढ़कर चीतल स्पॉटेड हरणों को देखें, जो पाकिस्तान में सबसे आम किस्म के हिरन हैं। उनका सुर्ख माइल भूरा रंग और सफेद नीचे हिस्से उन्हें झाड़ियों के दरमियान छुपने में मदद देते हैं, जबकि हरकत के वक्त उनके जिस्म पर मौजूद सफेद दाग एक खूबसूरत तजाद पेश पर अब अफ्रीकन सफारी की तरफ लेकर चलता है, जहां अफ्रीका के वसी मैदानों और घास के मैदानों में पाए जाने वाले जानवरों की हैरत अंगेज दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। सूरज की किरणें इस सरजमीन पर पड़ती हैं, जहां हर कदम पर नई जिंदगी और नए नजारे आपका दिल मोलेंगे। पहले इन खूबसूरत ज़ेब्रा को गौर से देखें। इन्हें उनकी सियाह और सफेद पट्टियों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये पट्टे उनके लिए कुदरत का एक तोहफा है, जो उन्हें घास के मैदानों में छुपने में मदद देते हैं और शिकारियों से बचाव का एक मिसाली तरीका है। उनकी तेज रफ्तार और चुस्ती देखें, जिससे वो आसानी से वसी मैदानों को उबूर कर सकते हैं। आगे बढ़ी और जमीन पर सबसे बड़े परिंदे शुतुरमुर्ग से हैरान हुए। इन बेपरवाज परिंदों के लंबे टांग, ताकतवर चूंच और सियाह और सफेद पर उन्हें एक मुनफरिद और दिलकश नजारा बनाते हैं। उनकी रफ्तार और तेज रफ्तारी देखें, जिससे वो गोया जमीन पर उड़ते हैं। ये मंजर इस बात की गवाही है कि कुदरत ने उन्हें भागने की सलाहियत से नवाजा है, लेकिन वो रंग के कोट के लिए जाने जाते हैं। उनकी ताकत और वकार उन्हें अफ्रीका के मैदानों का बादशाह सिर्फ उन हैरत अंगेज जानवरों को देखने के बारे में नहीं, बल्कि ये उनके माहौल और उनके माहौलियाती निज़ाम में अदा किरदार को समझने के बारे में भी है। ये जानवर इस सरजमीन के सफीर हैं, जो हमें अपनी खूबसूरती और अहमियत का एहसास दिलाते हैं। उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, ताकि हम इस खूबसूरत और मुतनव्वे दुनिया को आइंदा नस्लों के लिए महफूज रख सकें। आए मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं और अफ्रीका के इन नायाब खजानों को बचाने का अहद करें। बंद को रोका क्यों है?
तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसमें आपको सहराओं के राजों से पर्दा उठाने का मौका मिलेगा। ये डेजर्ट सफारी आपको रेत के वसी मैदानों, अनोखे जानवरों की दुनिया में लेकर जाएगा। सबसे पहले अपने अर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं और खूबसूरत काला हिरन तलाश करें। ये छोटे जिस्सी वाले हिरन अपने सियाह, चमकदार पूंछ और लंबे, मोड़दार सींगों के लिए मशहूर है। उनकी बड़ी आंखें और पुतली टांगे उन्हें सहराई माहौल में तेजी से हरकत कर पानी से दौड़ सकते हैं। उन्हें गरोहों में चलते लंबे पतले टांगों से वो तेजी से दौड़ सकते हैं। काला हिरन आमतौर पर छोटे ग्रोहों में रहते हैं और घास, पत्ते और फल खाते हैं। अरबी ओरिक्स, जिसे अरबी शहबाज भी कहा जाता है, एक बड़ा और खूबसूरत हिरन है जो अरब के सहराओं में पाया जाता है। उनका सफेद कोट सहराई धूप की तेज शुआओं को मुनकिस करता है, जिससे वो अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मददगार होता है। उनके लंबे, सीधे और नोकदार सींग उनका खास निशान है जो उन्हें दिफा और लड़ाई में मदद देते हैं। अरबी ओरिक्स घास, झाड़ियों और पौधों पर चलते हैं और पानी के हुसूल के लिए लंबी मसाफतें तय कर सकते हैं। ये डेजर्ट सफारी सिर्फ उन खूबसूरत जानवरों को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सहराई माहौल की नजाकत और इसमें रहने वाले जानवरों के किरदार को समझने के बारे में भी है। कोट और लंबे, मोड़दार सींगों के लिए मशहूर है। अच्छा ये लोग कैसे हैं? आप जेली फिश करके बनाना ना जेली। पापा मेरे फिश कितना सी हो रहा है? एक मिनट, बनाना छोटा सा है। लाइव हाँ लाइव है, देखो मूव कर रहा है। मुझे डर लग रहा वो है। देखो मजा आ रही है। नीमो एंड डोरी है, दोनों साथ साथ। उधर 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 ये तो बहुत टेढ़ी है। आ जाएगा मम्मा। नहीं, आज अल्लाह मालिक है। अल्लाह वो लॉयनस है। अगर किसी ने लाइन को टच किया ना वो सबसे डेंजरस है। लेकिन मेरा भी जी में लाइन को टच करने में, लेकिन आप चलते जाओ देखते जाओ। देखो देखो ये क्या कहते हैं? बी जेंटल एंड काइंड को आप बार भी देखोगी।
इसलिए वो पिला रही है। जी ब्लैक स्वान क्यों? ये ब्लैक स्वान है कहते हैं। सारा आंसर चलता है हाँ जी, वो सिल्वर फिश है, वो देखो सिल्वर फिश है, पानी में जब पे आ सकता है, आ जा सकता ये सिर्फ होता ही मैं तो प्यारा बस वीडियो बन रही है। और कभी ये देखिए, ये है सुरखाब। लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर सुरखाब के पर लगे हैं। ये देखिए, मुझे नहीं पता कौन से पर हैं इसके, जो इसकी यूनिक दुम लग रही है मुझे। और ये सफारी पार्क में है। इसके तो भी वो जो देखो स्केटिंग हो रही है, वो खुला हुआ वो एक स्केटिंग, इधर ही स्केटिंग हो रही है ना। इनकी भी वीडियो बना देखना क्या करेगा वो देखो